وزیر اعظم محمد شہباز شریف بلوچستان میں ضلع جعفر آباد کے سیلاب سے متاثرہ گاؤں حاجی علا ڈینو کے دورے پر روانہ۔ چیف سیکرٹری بلوچستان اور ڈی جی پی ڈی ایم میں بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعظم امدادی کاموں کا جائزہ لینے اور متاثرین کا احوال جاننے کے لیے ان سے ملاقات کریں گے۔ محمد شہباز شریف حفیظ آباد، گابی خان، قادرپور اور شکارپور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیں گے۔ موسلادھار بارشوں اور سیلابی ریلوں نے بستیوں کی بستیاں اجاڑ ڈالیں۔ سینکڑوں مکانات صفائے ہستی سے مٹ گئے، سڑکیں بہہ گئیں، پل تباہ اور راستے منقطع۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 45 افراد لقمہ اجل بنے۔ اموات کی مجموعی تعداد 1000 سے تجاوز، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ۔ شاہراہ قراقرم متعدد مقامات پر بند، ریلویز کارپوریشن محدود۔ امدادی سرگرمیاں بھرپور انداز سے جاری۔ ترکیہ سے متاثرین سیلاب کے لیے امدادی سامان لے کر 2 جہاز کل کراچی پہنچیں گے۔ سامان میں خیمے، ادویات اور دیگر اشیاء شامل۔ برادر اسلامی ملک سے مزید امدادی سامان آنے کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر رجب طیب اردوان سے گزشتہ روز ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کو پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا تھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا ٹیلی فون۔ پاکستان میں بارشوں اور سیلاب کے باعث ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ ایرانی صدر کی مشکل وقت میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم نے مشکل کی اس گھڑی میں اظہار یکجہتی اور تعاون کی پیشکش پر ایرانی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ متحدہ عرب امارات کی صدر کی مشکل وقت میں پاکستان کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ شیخ محمد بن زید کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ پاکستان کی قیادت اور عوام سے مکمل اظہار یکجہتی۔ متحدہ عرب امارات سے امدادی سامان کی پہلی کھیپ لے کر خصوصی طیارہ آج سے پہر 4:30 بجے نور خان ایئر بیس پہنچے گا۔ مزید 15 طیارے آئندہ چند روز میں پاکستان آئیں گے۔ کینیڈین عوام کی طرح متاثرین کے بارے میں دکھی ہوں۔ کینیڈا UNCRF اور ریڈ کراس کے ذریعے متاثرین کو کھانے، صاف پانی اور دیگر ضروریات فراہم کرے گا۔ پاکستان میں سیلابی صورتحال پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا ٹویٹ۔ فرانس پاکستان کے متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی عوام کو خوفناک سیلاب کا سامنا ہے۔ سیلاب میں لاپتہ ہونے والے افراد اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ سیکرٹری جنرل OIC کا پاکستان میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ تنظیم کے رکن ملکوں سے ہنگامی بنیادوں پر امداد کی اپیل۔ متاثرین کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے فوری امداد ضروری ہے۔ اسلامی تنظیمیں اور ادارے پاکستان میں متاثرین سیلاب کی امداد کریں۔ سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم۔ آذربائیجان کا متاثرین سیلاب کے لیے $20 لاکھ امداد دینے کا اعلان۔ آذربائیجان کے صدر کی ہدایت پر رقم سیلاب متاثرین کے لیے پاکستان کو فراہم کی جائے گی۔ سفارت خانہ آذربائیجان کا ٹویٹ۔ متاثرین سیلاب کے لیے ریسکیو کا آپریشن جاری۔ آرمی ایویشن کے 4 ہیلی کاپٹرز کے ذریعے خوازہ خیلہ میں سیلاب میں گھرے 110 افراد کو سوات منتقل کر دیا گیا۔ دیر بالا، کمراٹ اور لاموتی میں پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر دیر بالا روانہ۔ موسم کی شدت کے باعث رکاوٹیں درپیش۔ دیر اسکاؤٹس نے بھی ایمرجنسی ریلیف سینٹر قائم کر دیا۔ سوات میں بارش تھمتے ہی امدادی سرگرمیوں میں تیزی۔ تختہ بند کے مقام پر پھنسے 200 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ کلام میں محصور سیاحوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ علاقے میں راستوں کی بحالی کا کام بھی شروع۔
پاک بحریہ کا سندھ کے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ پاک بحریہ کے ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کی مدد سے کھمبر، بکرانی، لاڑکانہ، سانگڑ اور سکھر کے نواحی علاقوں میں محصور افراد کو محفوظ مقامات تک پہنچا دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں پاک بحریہ کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں طبی سہولتوں کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ترجمان پاک بحریہ۔ سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فضائیہ کا ریسکیو، ریلیف اور بحالی کا آپریشن جاری۔ سیلاب زدگان میں راشن پیکس، پکے ہوئے کھانے کے 3100 پیکٹس اور پانی کی 1100 بوتلیں تقسیم۔ پی اے ایف کی میڈیکل ٹیموں کی جانب سے 721 مریضوں کو مفت طبی امداد کی فراہمی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث مزید 13 افراد جاں بحق۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 16,871 ٹیسٹ کیے گئے، 270 مثبت کیس رپورٹ ہوئے۔ نئے مریضوں کی شرح 1.6% ریکارڈ۔ قومی ادارہ صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلیٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں ہما ملک۔ سرخیاں آپ جان چکے ہیں، خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف بلوچستان میں ضلع جعفر آباد کے سیلاب سے متاثرہ گاؤں حاجی اللہ دینوں کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ چیف سیکرٹری بلوچستان اور ڈی جی پی ٹی ایم میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعظم امدادی کاموں کا جائزہ لینے اور متاثرین کا احوال جاننے کے لیے ان سے ملاقات بھی کریں گے۔ محمد شہباز شریف حفیظ آباد، گابی خان، قادرپور اور شکارپور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ بھی لیں گے۔ اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ صدر اردوان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے شدید بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس صورتحال میں ترکیہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کو پاکستان میں سیلاب کی تازہ ترین صورتحال اور ہنگامی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کے لیے حکومتی کوششوں کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معمول سے زیادہ بارشوں اور سیلاب کے باعث ملک میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، جس کے نتیجے میں انسانی جانوں، ذریعہ معاش اور بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کو مکمل ریلیف دینے اور امدادی سامان کی ترسیل یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی امداد کے حوالے سے اقوام متحدہ سے فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ عالمی برادری بھی اس حوالے سے فنڈز کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم نے انسانی بنیادوں پر امداد پر صدر اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترکیہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور تمام شعبوں میں تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم نے مشکل کی اس گھڑی میں ترکیہ کی مدد اور خلوص کی قدر کرتے ہیں یہ لکھا، اور وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار یکجہتی اور مسئلہ کشمیر میں ترکیہ کی غیر متزلزل حمایت پر شکر گزار ہیں۔ ترکیہ سے امدادی سامان لے کر 2 جہاز کل کراچی پہنچیں گے۔ سامان میں خیمے، ادویات اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدر رجب طیب اردوان سے گزشتہ روز ٹیلی فون پر گفتگو میں پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا تھا۔ کراچی میں ترکیہ کے قونصل جنرل کل صبح ہوائی اڈے پر امدادی سامان پاکستانی حکام کے حوالے کریں گے۔ ترکیہ سے مزید امدادی سامان آنے کا بھی امکان ہے۔ وزیر اعظم سے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور سیلاب سے ہونے والے جانی نقصانات پر تعزیت کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی اور پاکستان کو سیلاب سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن امداد کی پیشکش کی۔ یو اے ای کے صدر نے قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے مکمل مدد کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات سیلاب متاثرین کے لیے فوری طور پر اشیاء خورنوش، ادویات، کیمپس اور دیگر سامان بھجوائے گا۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کی فوری امداد پر متحدہ عرب امارات کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اس دوران یو اے ای صدر کو بتایا کہ معمول سے زیادہ بارشوں اور سیلاب کے باعث ملک میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں انسانی جانوں، ذریعہ معاش اور بنیادی ڈھانچے کے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کو مکمل ریلیف دینے اور امدادی سامان کی ترسیل یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अपील पर मुत्तहिदा अरब अमारात से सैलाब ज़दगान से इमदादी सामान का तैयारा आज दोपहर नूर खान एयरबेस पहुंचेगा। यूएई की तरफ से इमदादी सामान लेकर मजीद 15 तैयारे आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान आएंगे। यूएई की ये पहली परवाज़ है जो इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान आ रही है, जिसमें खैमे, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने टेलीफोन पर रब्ता किया और पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब के बायस होने वाले जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस किया। ईरानी सदर ने मुश्किल की इस घड़ी में अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मामूल से 5 गुना ज़्यादा बारिशों के बायस शदीद सैलाब से जानी नुकसान के साथ लाइफ स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। मवासलाती राबते मुअत्तल होने से इमदादी सामान की तरसील में रुकावट आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मदद की अपील की है। ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इज़हार यकजहती और इस मुश्किल की घड़ी में ताउन की पेशकश पर ईरानी सदर का शुक्रिया अदा किया। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इज़हार करते हैं। कैनेडियन अवाम की तरह वो भी मुतासरीन के बारे में सोच रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पैगाम में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करने वाले इदारों के जरिए कर रहा है। UNCRF और रेड क्रॉस के इदारे पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन को खाने, साफ पानी और दीगर ज़रूरियात की खिदमात फराहम करेंगे। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए कनाडा ने अक़वाम मुत्तहिदा के फलाही इदारों को रकम फराहम कर दी है। पाकिस्तानी नजात कैनेडियन MP सलमा जाहिद ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि कनाडा ने $20,000 पाकिस्तान में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ को जारी कर दिए हैं, जो सैलाब मुतासरीन को खाने, साफ पानी और दीगर ज़रूरियात फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि कनाडा ने $3 मिलियन के फंड्स UN सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड के लिए भी मुख्तस किए हैं। ये फंड सैलाब से मुतासरा इलाकों में सेहत, ग़िज़ाइयत, खुराक की हिफाजत और पानी और सफाई की खिदमत के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने अपने ट्वीट में कहा है कि फ्रांस पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तैयार है। पाकिस्तानी अवाम को खौफनाक सैलाब का सामना है। सैलाब में बहुत से लापता होने वाले अफराद और उनके खानदानों के साथ हैं। सेक्रेटरी जनरल इस्लामी ताउन तंजीम तहा हुसैन इब्राहिम ने पाकिस्तान में सैलाब से जानी माली नुकसान पर इजहार अफसोस किया है। अपने बयान में सेक्रेटरी जनरल ने रुकन मुल्कों से हंगामी बुनियादों पर इमदाद की अपील की है। सेक्रेटरी जनरल ने इस्लामी तंजीमों और इदारों से इमदाद की भी अपील करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात को कम करने के लिए हंगामी इमदाद ज़रूरी है। और अज़रबैजान ने भी मुतासरीन सैलाब के लिए $20 लाख इमदाद देने का ऐलान कर दिया है। अज़रबैजान सफारत खाना ने अपने ट्वीट पे कहा है कि अज़रबैजान के सदर की हिदायत पर रकम सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान को दी जाएगी। और पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ, बरतानिया का इमदाद का ऐलान। बरतानिया सैलाब मुतासरीन को इमदाद के लिए पाकिस्तान को £15 लाख फराहम करेगा। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में सैलाब से अब तक 900 अफराद जाँ बहक और बारिशों से लाखों लोग मुतासर हो चुके हैं, जबकि बारिशों और सैलाब से इब्तदाई आदाद शुमार के मुताबिक 7 लाख से ज़ायद मकानात तबाह हुए हैं। बयान में कहा गया है कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम की हर मुमकिन इमदाद के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि हम वतनों की हिफाजत और आफियत हमारी अव्वलीन तरजीह है, खा कितनी ही कोशिश क्यों ना करनी पड़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह बारिशों से सूबा सिंध के तमाम अजला शदीद मुतासर हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सैलाब ज़दा इलाकों का मुसलसल दौरा कर रहे हैं। सूबा भर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासरीन की बहाली और इमदाद के हवाले से मज़ीद तफसील के लिए शिराज अली डाहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी शिराज, आगाह कीजिएगा।
जी, सिंध में सैलाब की सूरत हाल इस तरह है कि तबाहकारियाँ सिंध में जारी हैं और इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। सिंध के तमाम अज़ला जो है शदीद मुतासर हुए हैं हालिया मानसून की बारिशों के बाद जो मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है उससे, और सिंध के 23 अज़ला जो है बराह रास्त इफ़ेक्ट हुए हैं और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे सैलाब ना हो, पानी मौजूद ना हो। तमाम इलाके पानी में डूबे नज़र आ रहे हैं। सख्त मुश्किलात का सामना है लोगों को, आवाम को, और ख़ास करके जो लोग देहात में हैं वो तमाम लोग जो हैं इस वक्त पक्के के इलाकों में, सड़कों में, रिलीफ कैंप्स में वहाँ पर मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से भी जो है सैलाब मुतासरीन के लिए और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ हमें मुतहरिक नज़र आए इस तमाम इक़दामात में। वो मुसलसल सिंध का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने सखर का दौरा किया, मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा किया, सजावल का दौरा किया। वफाकी हुकूमत की तरफ से 15 अरब रुपए की ग्रांट जो है वो फौरी जारी कर दी गई थी, जो BISP के थ्रू 25,000 रुपये फ़ी ख़ानदान को जो है फौरी रजिस्टर्ड जो अफराद हैं BISP में उनको दी जा रही है। जबकि इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो पूरे सूबे भर में जारी हैं। दरिया सिंध में उसमें पानी बढ़ता जा रहा है क्योंकि तोसा के मकाम पर और पीछे से पानी की जो मज़ीद आमद है वो जो है हो रही है। जी बहुत शुक्रिया। शिराज अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि सिंध में मानसून की हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई है। मुतासरीन की इमदाद और रेस्क्यू समेत ज़िला ठट्ठा का हवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान अहमद खान से। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। मानसून की हालिया तूफानी बारिश और सैलाबी रेले ने जहां पूरे मुल्क के तमाम सूबों में तबाही मचाई है, वहीं सूबे सिंध के तमाम अजला को भी तबाह बर्बाद कर दिया है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला ठट्ठा में, और ज़िला ठट्ठा में एक गांव जो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुका है। और यहाँ पे मेरे कैमरामैन अगर दिखा सके तो इस सैलाबी रेले के अंदर कुछ ऊँचे मकाम पर कुछ झुग्गियाँ और कुछ खेमे लगे हुए नज़र आएंगे जहाँ पर लोगों ने पनाह ली हुई है आर्जी तौर पर, और अपने घरों को क्योंकि डूब चुके हैं उनके घर यहाँ पर तबाह हो चुके हैं। इसके साथ साथ बचाव बंद जो एक वाहिद रास्ता था इस गांव को ठट्ठा शहर से जोड़ने का, वो भी मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, शिकाव पड़ चुका है, और इसका राब्ता जो है वो शहर से मुनक़ता हो चुका है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चलूँ कि इस वक्त सिंध में जो सैलाबी सूरत हाल है उससे निमटने के लिए सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत पूरे तय अपने तौर जो है ना वो इमदादी कामों में मसरूफ़ है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बात करेंगे ठट्ठा की। ठट्ठा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फ़ौज ने टेंट सिटी कायम कर दिया है। टेंट सिटी में मुतासरीन को खाना, रिहाइश और मेडिकल की सहूलियात दी जा रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा हसन बेग टेंट सिटी में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी मिर्ज़ा हसन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, मानसून की बरसात ने ठट्ठा को अपना पूरा लपेट में ले लिया है, चाहे कोहिस्तानी इलाका हो, साहिली इलाके हो या शहरी इलाका। सैकड़ों की तादाद में लोग मुतासर हुए हैं और नकल मकानी पे मजबूर हो गए हैं। तमाम ज़मीनी रास्ते इस टाइम मुनक़ता हो चुके हैं, और ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ इस टाइम पाकिस्तान फ़ौज ने जो है वो जिम्मेदारियाँ संभाली इन मुतासरीन की, और यहाँ गुलामुल्लाह रोड पे एक बेहतरीन किस्म की कैंप सिटी कायम की है, जिसमें इस टाइम तक 700 घरों को जो है वो रिहाइश दी है, कैंप लगाए गए हैं। इस रिहाइश के साथ साथ पाक आर्मी जो है इनको खाना और इलाज की सहूलत भी दे रही है। इसके अलावा इनको मुख्तलिफ तहफ़ दे रही है, जिसमें कंबल हैं, मच्छरदानियाँ हैं और दूसरे तहफ़ हैं, बच्चों के लिए बिस्कुट और दूसरा सामान भी है। तो पाक फ़ौज का अभी जो दूसरा मिशन है, इसी यूनिट जो है ये तुर्की कॉलोनी के अंदर एक कैंप कायम कर रहे हैं, जहाँ बकाया जो लोग मुतासर हुए हैं उनको मुंतकिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। सिंध में जहां बारिश ने तबाही मचा दी, तो वहीं तूफानी बारिश ने जिला टंडो अलायार के गांव मेवन वेहू को भी डबो दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सुलेमान सनहड़ो से। जी सुलेमान, बताइएगा। इस वक्त टंडो अलायार के कदीमी गांव मियां वयूं में मौजूद हूं, और ये गांव कदीमी है और साथ ही कदीमी कब्रिस्तान भी है, जिसमें 600 साल से ज़्यादा की कदीमी कब्रें भी मौजूद हैं। तो इस गांव के तमाम अफराद इस वक्त इस गांव को छोड़ के बाहर चले गए हैं, और कुछ सामने रोड पर कैंप लगा कर बैठे हुए हैं। 300 घर जो डूबे पड़े, कब्रिस्तान भी डूबा पड़ा है, और जो है रास्ता वो बिल्कुल आप जाओ यहाँ देखे कुछ भी नहीं है, रास्ते वास्ते बंद है। इनका कहना है कि हम अपनी मवेशी लेके यहाँ पर बैठे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इस वक्त वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं क्योंकि बच्चों में बीमारी फैल गई है। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर मेडिकल कैंप लगाया जाए, इनके लिए टेंट का इंतज़ाम किया जाए, इनके लिए मच्छरदानी का इंतज़ाम किया जाए, ताकि ये सुख का सांस ले सकें।
बहुत शुक्रिया जी। आपको बताएं कि थरपारकर में मॉनसून बारिशों से जहां एक तरफ खुश्क साली का खात्मा हुआ है तो दूसरी तरफ मुसलसल बारिशों से अवाम की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। तफसील बता रहे हैं थरपारकर से नंदलाल लोहानो। ज़िले थरपारकर में इस साल मानसून की बारिशें पड़ने के बाद पूरा ज़िला थरपारकर के हर तरफ हरियाली पैदा हो गई है। थरपारकर में कुदरती तौर पर एक खुशहाली का सिलसिला शुरू हुआ है। थरपारकर में मुसलसल बारिशों के बाद थरी अवाम की ज़िंदगी में तकलीफों में इजाफा हो रहा है। मिट्टी शहर की बात करें तो हाई स्कूल मिट्टी के ग्राउंड जो है बारिश के पानी से भरा हुआ है। मिट्टी की सरान कॉलोनी में जो कदीमी तालाब है वो भी मुसलसल बारिश के पानी के बाद भर चुका है और उसके भी ओवरटॉप होने का खदशा है, जिसके बाद वो पानी घरों में दाखिल होने का भी खतरा है। तहसील कलोई का जो 4 यूनियन काउंसिल है वो बैराज पर मुश्तमिल है। वहाँ पर कल रात की बारिशों के बाद रन्न शाख और ढोरो शाख का पानी पलट चुका है और सैलाबी पानी ने मुख्तलिफ गाँव की तरफ रुख कर दिया है। तमाम फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। घरों में पानी आने के बाद कई देहात में भी पानी आ गया है और लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। ज़िले थरपारकर में तहसील कलोई में बैराजी इलाकों को अभी तक भी सिंध हुकूमत ने हाफिज़ुद्दौला इलाका करार नहीं दिया है। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान रेंज पर तूफ़ानी बारिशों के बायस रूद कोही नालों में तुग़यानी का सिलसिला ताहाल बरकरार है। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के मुतवक्के सैलाब और रूद कोहियों की मजीद सैलाबी रेलों के पेश नज़र 15 खैमा बस्तियाँ और 10 मजीद फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। कैंप्स में पाक फ़ौज और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से सैलाब मुतासिरीन को खाने पीने समेत तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इसी हवाले से मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़हूर कुरैशी से। जी ज़हूर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान में। कोहे सुलेमान पर होने वाली मानसून बारिशों से डेरा गाजी खान में रोद कोहियों के सैलाबी रेले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। जिला डेरा गाजी खान, राजनपुर और तोसा शरीफ की सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। जिला डेरा गाजी खान की 342 बस्तियां सैलाबी रेले के पानी से मुतासिर हुई है। 6 लाख से ज्यादा अफराद जो है सैलाबी रेले से जो है मुतासिर हुए हैं। 14 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन का रकबा जो है इसके ज़ेरे आब आ गया है। 58,000 से ज्यादा मकान जो है वो मुनद्दम हुए हैं। और डेरा गाजी खान, राजनपुर और तोसा शरीफ के अंदर आर्मी के हेलीकॉप्टर जो यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को जो सैलाब में फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है और उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है और उनके खाने पीने का इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से तकरीबन 15 से ज्यादा जो है खैमा बस्तियां जो है ना कायम की गई है। डेरा गाजी खान के जिला इंतजामिया की तरफ से तमाम जितने डेरा गाजी खान के सरकारी स्कूल हैं उनको सैलाब मुतासरीन के लिए खोल दिया गया है। बहुत शुक्रिया ज़हूर। लोधरा में सैलाब से मुतासरा इलाकों के अवाम की इमदाद और बहाली के लिए मुख्तलिफ ताजिर और फलाही तंजीमों की तरफ से इमदादी कैंप लगाकर इमदाद इकट्ठी करने का सिलसिला जारी है। इमदादी कैंपों में शहरी बड़ी तादाद में अतियात जमा करवा रहे हैं। तफसील बताएंगे अब्दुल्ला डाहा। सैलाब से मुतासरा इलाकों के अवाम की इमदाद और बहाली के लिए मुल्क भर की तरह लोधरा में भी ताजर और फलाही तंजीमों की तरफ से इमदादी कैंप लगाकर इमदाद इकट्ठी की जा रही है, जहां शहरियों की बड़ी तादाद अतियात जमा करवा रही है। इसके साथ शहरी बड़ी तादाद में खाने पीने की चीज़ें जिनमें पकाने का तेल, घी, चावल, आटा, दालें, खजूर और मिसाले जात शामिल हैं, अतियात कर रहे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में अपने भाइयों की मदद का जज्बा काबिल दीद है। हम डोर टू डोर जाकर तमाम ताजर भाइयों से फ़ंड वसूल करेंगे और वसूल करके उन मुतासरीन के लिए खुश्क राशन, खैमे वगैरह और बिस्तर वगैरह का बंदोबस्त करके जल्द अज जल्द हम उन तक पहुँचें। दूसरा, मैं अपनी लोधरा की ताजर बरादरी, लोधरा की आवाम से भी अपील करूँगा कि इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लोधरा की तीनों तहसीलों से अंजमन ताजरान, सियासी नुमाइंदे, कारकुन, मुखैर हजरात, सिविल सोसाइटी और फलाही तंजीमें अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। लोग दिल खोल कर इमदाद कर रहे हैं। फाउंडेशन ने सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कैंप लगाया है, जिसमें सब लोधरा वाले भरपूर मदद कर रहे हैं। मैंने भी हस्ब तौफीक जो मदद करी मैंने कर दी। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि वो भी आएँ, इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि उन सैलाब ज़दगान की मदद हो सके। शहरी खुश्क राशन, दवाएं, खैमे, कपड़े, जूते और नकद रकम की सूरत में अतियात जमा करवा रहे हैं। अब तक लोधरा के शहरियों की तरफ से 3 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान इकट्ठा कर लिया गया है। ये सूट मैं जो है ना 150 सूट अंजमन ताजरान को दे रहा हूँ, उनके हैंड ओवर कर रहा हूँ और जो मुतासरीन सैलाब के हैं उनके लिए दे रहा हूँ। 3 ट्रकों का ये काफ़िला इमदादी सामान लेकर सैलाब से बड़े पैमाने पर मुतासर होने वाले इलाके
राजनपुर, जामपुर, तौसा शरीफ जाएगा, जहाँ ये सामान लोधरा के शहरियों की तरफ से अंजमन ताजरान के नुमाइंदे सैलाब से मुतासरा अफराद में तकसीम करेंगे। लोधरा की अंजमन ताजरान मुखय्यर हजरात की तरफ से दी जाने वाली इस इमदाद से सैलाब से मुतासरा लोगों के दुखों का मुदावा तो नहीं होगा, लेकिन इनकी मुश्किलात में कमी ज़रूर आएगी। खबर शामिल करेंगे चारसद्दा से, जहां मजीद सैलाब का खतरा मुकम्मल तौर पर टल गया है। महकमा आबपाशी के मुताबिक बालाई अजला में मजीद बारिशें न हुई तो चारसद्दा के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक रहेगा। दरियाए सवात में 1,21,000 पानी का आखिरी रेला मुंडा हेडवर्क्स से गुजर चुका है। इस वक्त मुंडा हेडवर्क्स पर 91,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है, जबकि यहाँ से पानी गुजरने की मजमूई गुंजाइश 2 लाख क्यूसिक है। नौशहरा में दरियाई काबुल में 3,07,000 क्यूसिक का एक बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। सवात से आइंदा 6 घंटों में एक और बड़ा सैलाबी रेला नौशहरा से गुजरेगा। मुतासरीन सैलाब के लिए बनाए गए रिलीफ कैंपों में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फजल नबी से। जी फजल नबी, बताइएगा। इस वक्त दरिया काबुल में 3,07,000 क्यूसेक के करीब सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि 4 से 6 घंटे बाद सुबह से मजीद 1,30,000 के करीब क्यूसेक तक एक और सैलाबी रेला नौशहरा से गुजरेगा, जिससे एक बार फिर दरिया काबुल में पानी की सतह इंतहाई हद तक बुलंद होगा। और नौशहरा कला के पूरा इलाका, पीरसबाग, पुश्तून गढ़ी, गढ़ी में समेत मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इस वक्त तमाम इलाकों में पानी ही पानी है और पूरा इलाका जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी में घिरा हुआ है। पूरे इलाके में लोगों ने मकामानी करके करीब ही इलाकों में के रिश्तेदारों के यहाँ और रिलीफ कैंप में मुंतकिल हो चुके हैं। सुबह से आने वाले बड़े रैली की इतला से पूरे इलाके में खौफ हरास फैल चुका है, जबकि इंतजामिया ने दरिया काबुल के करीब लोगों को सख्ती से खबरदार करते हुए कहा कि वो किसी भी सूरत में वापस अपने घरों को न जाए। इंतजामिया ने 100 के करीब मुतासरीन सैलाब के लिए रिलीफ कैंप कायम किया हुआ है, जहाँ मुतासरीन की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है और नुकसानात का तखमीना भी लगाया जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हो चुका है। हजारों की तादाद आबादी भी मुनहदिम हो चुकी है। पूरे जिले में रिलीफ का काम जारी है। इंतजामिया के अलावा फलाही इदारे भी रिलीफ पहुंचाने में पेश है। बहुत शुक्रिया फजल नबी। यहाँ आपको बताएं कि डेरा गाजी खान डिवीज़न की कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिशों और रूद कोहियों ने डेरा गाजी खान और राजनपुर के मुतादिद इलाकों को शदीद मुतासिर किया है, जबकि दरियाए सिंध में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से रिलीफ ऑपरेशन जारी है। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा से, जो इस वक्त गाजी घाट के मकाम पर मौजूद हैं। जी फरहान, बताइएगा दरियाए सिंध में सैलाब के हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? 25 जुलाई से 27 अगस्त तक होने वाली शदीद बारिशों और रोद को ये ने ज़िला राजनपुर और ज़िला डेरा गाजी खान को शदीद मुतासर किया है। दरियाओं में भी तुगयानी देखने में आ रही है। मैं इस वक्त गाजी घाट पुल पर मौजूद हूँ और दरियाए सिंध में भी हमें पानी जो है वो मामूल से कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इसमें तुगयानी भी दिखाई दे रही है, जबकि इंतज़ामिया का ये कहना है कि तौसा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आइंदा 24 घंटे में मुतवक्की है। जो दरियाए सिंध के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर रिलीफ कैंप्स भी बनाए गए हैं और ख़ास तौर पर वहाँ पर लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो नशेबी इलाकों को फौरी तौर पर खाली कर दें। जनूबी पंजाब में तो तकरीबन 45 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 2.5 लाख से ज़ायद अफराद जो सैलाब से बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। तकरीबन कोई 18,000 ऐसे कच्चे पक्के मकानात हैं जो कि सैलाबी पानी से मुनहदम हो गए हैं। 9 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर खड़ी फसलें, जिनमें चावल और कपास की जो फसलें थी वो इससे शदीद मुतासिर हुई हैं और ख़ास तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी शदीद मुतासिर हुआ है। BDM में, NDM में, ज़िला इंतज़ामिया, पाक फ़ौज, सब की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है। तो बीइंग पाकिस्तानी ये वो वक्त है कि हम सबको अपनी इस काविश के अंदर अपना इसमें हिस्सा डालना होगा और आगे बढ़कर सैलाब मुतासिरीन की मदद करनी होगी। बहुत शुक्रिया फरहान मिर्ज़ा। खैबर पख्तूनख्वा के दूर उफ्तादा ज़िला कोहिस्तान में सैलाबी रेलों में बहकर 17 अफराद जाँ बहक और मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों मकानात गिरने से लोग बेघर हो गए। शराहिक और अकरम बलाक होने से गिलगित बल्तिस्तान का दूसरे इलाकों से राबिता मुनक़ता है, जबकि बिजली और मवासलात का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कोहिस्तान के अवाम को रोज़मर्रा ज़िंदगी में सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। तफसील बताएंगे कोहिस्तान से शम्सुर रहमान शम्स। इस वक्त मैं ज़िला पर कोहिस्तान के मुकाम उछार नाला में मौजूद हूँ। यहाँ से सैलाब का आगाज़ हुआ था।
मड स्लाइडिंग का सिलसिला जारी है और यहाँ पे शाहरा कराकरम बंद है। मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला कोहिस्तान के तीनों अजला में इस वक्त मखदूश सूरत हाल है और चारों तरफ सैलाब की जद में है। पुलिस के मुताबिक तीनों अजला में अब तक 17 लोग जाँ भाग हो गए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर ज़िला लोअर कोहिस्तान के इलाके दुबेर सनागई में 5 लोग सैलाबी रैली में फंसे हुए थे। 4 घंटे मुसलसल फंसा रहने के बाद एक आदमी को मुकामी लोगों ने रेस्क्यू किया और 4 लोग सैलाबी रैली में बह गए। पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कोशिश है कि हम पहले लोगों को पैदल गुजारने के लिए रास्ता बनाए। लोगों की बड़ी परेशानियाँ, खासकर खंडे हवेली में बड़ा फ्लड आया, वो लोग बड़े परेशान हैं। फिर रास्ता ख़त्म हो गया, इसलिए कोशिश है कि पानी को डिवाइड करते हैं तो तकसीम हो जाए, लोगों को पैदल आने जाने के लिए रास्ता खोले। ज़िला कोहिस्तान का जो सबसे दुरफ्तादा इलाका है तहसील खंडा, वहाँ का एक गांव बिरती जो कि मुकम्मल तौर पे सफ़े हस्ती से मिट गया है। पुलिस के मुताबिक 300 से ज़ायद घराने इस वक्त जो हैं वो सैलाब से तबाह हो गए हैं। कम्युनिकेशन का सिस्टम मुकम्मल तौर पे जाम है। आगे पुले, आगे नहरें, जितने जो मतलब है कि जो लोगों की ज़रूरियात है वो सारे मतलब है कि इस टाइम फानम ख़त्म हो गए हैं। लेकिन इस टाइम हमारे आगे दर्रे से रब्ता नहीं होते क्योंकि रास्ता मुनक़दा हुए, सिग्नल का इशू है। लोग अपने प्यारों से राबते के लिए तरस रहे हैं। एक दूसरे से लोग पूछ रहे हैं कि दर्रों देहातों में क्या हो रहा है। यहाँ पे हालात बड़े गंभीर हैं। शाहरा कराकरम बंद है। पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाली ये जो शाहरा कराकरम है ये बंद है। सुबह गिलगित बल्तिस्तान का राब्ता पूरे मुल्क से कट कर रह गया है। शहर दासू, पटन और दीगर इलाकों में कहत का अंदेशा है। अशियाए खुर्दनूश की किल्लत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के सैलाब की पेश की इत्तला देने वाले डिवीज़न के मुताबिक दरियाए सिंध में दरियाए काबुल की तरफ से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है, जिस पर अटक में रेड कोड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू 1122 अटक हाई अलर्ट है। दरियाए सिंध में पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसिक, जबकि तरबेला डैम में पानी का अखराज 2,85,000 क्यूसिक है। दरियाए काबुल खैराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 5,86,000 क्यूसिक है। दरियाए सिंध और काबुल में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अटक, हजरों और जंड की इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत जारी की गई हैं। चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुर्रम आगा बलूचिस्तान के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो सैलाब की सूरत हाल और कौमी शाहराहों की बहाली का जायजा लेंगे। चेयरमैन NHA वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन NHA सूबे में फील्ड अफसरान और अमले से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने चेयरमैन NHA को बलूचिस्तान का दौरा करके सैलाब से मुतासिरा कौमी शाहराहों का जायजा लेने की हिदायत जारी की थीं। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान भी हालिया बारिशों और सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ है। सैलाब से मुतासिरा लोगों के लिए जाफराबाद में खैमा बस्ती कायम की गई है, जहां पर सैलाब ज़दगान को इमदाद फराहम की जा रही है। मज़ीद तफसील जानते हैं जाफराबाद से नसीर अहमद से। और यहाँ जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत की जानिब से यहाँ पर रिलीफ कैंप किए गए हैं और लोग जो सैलाब में फंसे हुए लोग थे उन्हें निकाल कर महफूज मकाम पर लाए गए। उनके लिए तिबी इमदाद और जानवरों के इलाज मालजे के लिए महकमा हैवानात ने भी अपने, और इसके साथ ही यहाँ पर जो है खैमा बस्तियाँ कायम की गई हैं, जहाँ पर उन्हें राशन खुराक वगैरह भी फराहम किया जा रहा है। हमारे घर भी गए हैं, हमारा माल भी गया है और राशन भी तो हमें मिल रहा है, इधर गवर्नमेंट दे रही है। यहाँ पे खैमा बस्ती कैंप किया हुआ है, काफ़ी खैमे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद समझते हैं कि आगे भी बेहतर करेंगे। लाख लाख एहसान है हमारे को, बहुत इनका लाख लाख एहसान है कि हमको इधर निकाल के 6-7 दिन हो रहे हैं, दवाई मिल रही है, राशन मिल रहा है, हमारे को टेंट मिले हुए हैं। सैलाब बलूचिस्तान के मुतासिर इलाकों में सैलाब की तबाहकारियों के बायस इमदादी और बहाली का काम तेज़ कर दिया गया है। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के जरिए मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। कोयटा से हमारे नुमाइंदे सरफराज शेख हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी सरफराज शेख बताइएगा। जी हालिया सूरत हाल के मुताबिक बलूचिस्तान भर में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। हुकूमती सतह पर जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो काबिल तहसीन है। ग्राउंड रियलिटी को अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो कुछ ऐसे इलाके जहां पर मवासलाती निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ, वहां पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में
ताहाल कुछ मजबूरियों का सामना है, लेकिन इसके बावजूद भी ज़िली सतह पर जो इंतज़ामिया है वो मुअस्सर इक़दाम कर रही है। इस पूरे रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हमेशा की तरह हमारी आर्म फोर्सेस ने बहुत ही भरपूर किरदार अदा किया है। पाक आर्मी, FC, लेवीज़, पुलिस और जितने भी मुतल्लिक़ा इदारे हैं वो PDMA के साथ मिलके भरपूर तरीके से इमदाद व बहाली के कामों में मसरूफ़ हैं। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से एक फ़्लड कंट्रोल रूम कायम किया गया है CM सेक्रेटेरिएट में, वहाँ पर भी सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया से मुसलसल रब्ता किया जा रहा है। PDMA की जानिब से भी कंट्रोल रूम के अंदर पूरी सूरत हाल को देखा जा रहा है और उसमें जहाँ जहाँ जिस चीज़ की कमी है वहाँ पर उस इलाके में पहुँचाई जा रही है। मवासलाती निज़ाम के लिए भी मुअस्सर किरदार अदा किया जा रहा है। जितने मुतल्लिक़ा इदारे हैं वहाँ पर वो मुसाफिरों को और वहाँ की जो आवाम है इलाकाई तौर पर वो भी उस रूट को खुलवाने में और वहाँ पर लोगों की इमदाद व बहाली में मसरूफ़ है। इसके साथ साथ जो एक सबसे अच्छी चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, जब भी कभी एक आजमाइश का वक्त आया है पूरी कौम ने अपना भरपूर साथ दिया है और उसमें हमारे इदारों के साथ साथ जो हमारे रिफाही इदारे हैं, हमारी समाजी तंजीमें हैं, हमारा माशरती किरदार है, उसमें भी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के मानसून बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में हुकूमत बलूचिस्तान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के साथ साथ फ्री मेडिकल कैंप्स का भी इनेकाद कर रही है ताकि मुतासर अफराद को सेहत की सहूलियात फराहम की जा सकें। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ज़िला मस्तोंग के इलाके स्पीजन में मौजूद हमारे नुमाइंदे मीर सलाम जोगज़ई से। जी मीर सलाम, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला मस्तूंग के नवाई इलाके में जो हालिया बारिशों और सैलाब से शदीद मुतासर हुआ है। यहाँ पर पाक फ़ौज FC बलूचिस्तान की जानिब से जो है रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है, जबकि इस हवाले से एक फ्री मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया है। इस वक्त 500 से ज़ायद मरीज़ों का इलाज किया जा चुका है। इन मरीज़ों में ज़्यादातर वो वबाई अमराज का शिकार हुए हैं। इस मेडिकल कैंप में मरीज़ों को जो है फ्री अदवायत भी फराहम की जा रही है। जी, हुकूमत बलूचिस्तान का हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए 2000 किलोग्राम राशन ज़िला झलमक्सी में मुतासरीन तक पहुँचाया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर हेलीकॉप्टर इमदादी कार्रवाइयों के लिए वक्फ था, तहम मौसम की ख़राबी के बायस कुछ दिन फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल रहा। मौसम की बेहतरी के साथ ऑपरेशन का दोबारा आगाज़ कर दिया गया। फ़ज़ाई ऑपरेशन के ज़रिए आज दीगर मुतासर इलाकों में भी इमदादी अशिया की तरसील की जाएगी। मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए पाक फ़ौज का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक खाज़ाखेला में सैलाब में घिरे 110 अफराद को हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू करके सवात मुंतकिल कर दिया गया। इन अफराद को अशिया खुरनोश और ज़रूरी तिब्बी इमदाद दी गई। वादी कुमराट में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स कैंट सवात से खुसूसी तौर पर मौसम ठीक होने पर उड़ान भरेंगे। दीर स्काउट्स ने सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कोर सेंटर्स कायम कर दिया है, जिस किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कंट्रोल रूम के इन नंबरों पर राबिता किया जा सकता है। 0309113110 032357800067 09458255526। कुछ दीगर अहम कौमी खबरों के लिए रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। सैलाब से मुतासर इलाकों के अवाम की इमदाद और बहाली के लिए पशतूर में पाक फ़ौज की जानिब से इमदादी कैंप लगाया गया है, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद अतियात जमा करवा रही है। सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के लिए आर्मी हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है, जहाँ किसी भी जगह से सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए रकम जमा करवाई जा सकती है। सैलाब से मुतासर इलाकों के अवाम की इमदाद और बहाली के लिए पसरूर में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इमदादी कैंप लगाया गया है, जहां शहरियों की बड़ी तादाद अतियात जमा करवा रही है। पाकिस्तान आर्मी के कैंप में पसरूर के अवाम बड़ी तादाद में खाने पीने की चीज़ें, जिनमें पकाने का तेल, घी, चावल, आटा, दालें, खजूर और मसालाजात शामिल हैं, अतिया कर रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में पसरूर की अवाम का जज्बा काबिल दीद है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए आर्मी हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है, जिसका किसी भी जगह से सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए रकम जमा करवाई जा सकती है। शहरी UN 1135 पर कॉल करके मुल्क भर से किसी भी जगह से नकद रकम और अतिया जमा करवा सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी मुसीबत की इस घड़ी में सैलाब से मुतासरा अपने भाइयों की इमदाद के लिए के साथ रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में भी सरगर्म हैं।
सिंध बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फजाइया का रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली का ऑपरेशन तेज रफ्तारी से जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हाला, मिटियारी, तलहार, माछी बोलानी, लाशारी, नारवा, सेवन शरीफ, गारो, जाती, हाजीपुर, चूट जमाली, मीरपुर खास, झलमक्सी, हाजीपुर, लाकड़ा, मटियारी, शहदाद कोट, फाजिलपुर और दीगर इलाकों में ख़ानदानों में राशन पैक्स, खाने के पैकेट्स और पानी की बोतलों समेत दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की गईं। शुमाली जोन में भी पाक फजाइया की बेसिस खैबर पख्तूनख्वा में हालिया तूफ़ानी बारिशों से होने वाली तबाही के बाद मुल्क व कौम की खिदमत की पुकार पर लब्बैक कहने के लिए हम वक्त तैयार हैं। PF के फ्री मेडिकल कैंप मुतासर इलाकों में मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। पाक बहरिया का सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर और कश्तियों की मदद से कंबर, बकरानी, लाड़काना, सांगड़, सखर के नवाही इलाकों में महसूर अफराद को महफूज मकामात तक पहुँचाया गया। मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन तकसीम किया गया है और तिब्बी सहूलियात की मुसलसल फराहमी भी यकीनी बनाई जा रही है। पाक बहरिया मुसीबत के शिकार हमवतनों की बहाली तक इमदादी ऑपरेशन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल आसिफ हुसैन की हिदायत पर पंजाब भर में मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स का क़याम जारी है। पंजाब रेंजर्स के मुताबिक फ्लड रिलीफ कैंप्स में बुनियादी ज़रूरियात का सामान इकट्ठा किया जा रहा है। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए हम वक्त तैयार है। मुश्किल की इस घड़ी में आवाम को सैलाब मुतासिरीन की दिल खोल कर मदद करनी चाहिए। सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जहां लोग कपड़े, खाने पीने की अशिया और दूसरा सामान जमा करवा रहे हैं। इस मौके पर वो किन जज्बात का इजहार करते दिखाई देते हैं, आप भी देखिए। सैलाब ज़दगान के लिए मैं सबसे यही अपील करूंगा कि सब लोग यहाँ पे आएँ और इनकी हेल्प करें। जो इस वक्त राजनपुर, जामपुर और रुझान का जो हाल है, इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। हमारी ताजर बरादरी, बिज़नेस कम्युनिटी जितनी है, यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी हैसियत में यहाँ हमारे पास सामान वगैरह जमा करा रहे हैं, जिसमें राशन है, अद्वियात हैं, पानी की बोतलें हैं, रस हैं, कुछ इस तरह के आइटम्स जो हम इनिशली वहाँ लेके जा सकते हैं। इससे पहले भी एक जो है खेप मुतासरीन तक पहुँचा चुके हैं। ये दूसरा जो है सिलसिला जारी है, जिसमें शहरी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह कि पाकिस्तानियों में जज्बा है और आप देख रहे हैं कि हमारे कैंप पे भी लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। हमने 300 राशन बैग जो है वो तौसा शरीफ पहुंचा दिए और अब हमारी जो सेकंड खेप है वो सुबह कल जा रही है। सिर्फ हुकूमत नहीं इसको कर सकती, हम सभी लोगों का फ़र्ज़ है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, हम आम लोग हैं, वो सारे इसमें अपना अपना हिस्सा पूरा डालें। फंड रेजिंग कैंपेन हमने लॉन्च कर दी है, तो यूथ के लिए स्पेशली मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सैलाब में फंसे हुए जो लोग हैं, जो तबाह हो चुके हैं, उनका एहसास करें, उन पे एहसान ना करें। और माल और मवेशी और बागात और फसलें सारा कुछ तबाह हो गया है। तो मुश्किल की इस घड़ी में हम सब का फ़र्ज़ है कि सियासी नज़रियात और साथ सियासी बातों को और मजहबी और मसल की तसुबात को एक साइड पर रखते हुए इंसानियत के नाते जो है अपने सारे भाइयों की खिदमत करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान आज से पहले 4:30 बजे नूर खान एयरबेस पहुँचेगा। इमदादी सामान में खैमे, खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अपील पर मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदादी सामान की पहली खेप लेकर तैयारा आज नूर खान एयरबेस पहुँचेगा। UAE की जानिब से इमदादी सामान के 15 मज़ीद तैयारे आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि ये पहली परवाज़ है जो इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान आ रही है। वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कि सैलाब से मजमूई तौर पर 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब सैलाब ज़दगान की मदद और इमदाद की बजाय अपना पावर शो दिखाने में मसरूफ़ हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से 1000 से ज़्यादा लोग जाम हक, हज़ारों ज़ख्मी और लाखों खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़र हैं। हुकूमत इन सैलाब मुतासरीन को बचाने में मसरूफ़ है, जबकि इमरान खान को अपनी सियासत की पड़ी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करने के बजाय सूबे में जलसे कर रहे हैं। क्या उनको मुल्क के सैलाब मुतासरीन पर रहम नहीं आता?
क्या उन्होंने तबाहकारियाँ नहीं देखी? सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के लोग तमाम मकामी और बैनुल-अक़वामी डोनर्स को सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत को फंड ना देने की तलकीन करते हुए अपनी तमाम तर तवानाई सर्फ कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि जलसे में भी PTI के नुमाइंदे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपील कर रहे हैं कि सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पैसे न भेजें। हम एक संगीन इंसानी बहरान से गुजर रहे हैं। हमें इस वक्त सियासत, मुखालफत और इल्ज़ाम तराशी की नहीं, इंसानी ज़िंदगियाँ बचाने की ज़रूरत है। शेरी रहमान ने कहा कि बेघर, बेयार और मददगार अफराद को पनाह, खुराक और इमदाद पहुँचानी है। अहले वतन से अपील है, ये सियासत और तकसीम का नहीं, आफत में मुत्तहद रहने का वक्त है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी के अरकान असम्बली और कारकुनों को हिदायत की है कि अपनी तमाम तर तवानाई सैलाब ज़दगान के लिए मुख्तस करते हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने पूरी कौम से अपील की है कि मुश्किल की इस घड़ी में मुब्तला हमवतनों की मदद करें। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की तकालीफ के इजाले के लिए हमें हर मुमकिन इक़दाम करना होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने आवाम से सैलाब ज़दगान की इमदाद की अपील करते हुए कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन की इमदाद में अपना हिस्सा डालें। ट्विटर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि अपने भाइयों, बहनों और ज़रूरतमंद बच्चों की इमदाद हम पर फ़र्ज है। पाक फौज की जानिब से मुतासरीन सैलाब के लिए मुल्क भर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ज़िला राजनपुर में पाक फौज ने फ़ज़ाई रिलीफ ऑपरेशन किया। मुतासरीन को राशन बैग्स और टेंट पहुँचाए गए। मुतासरीन की मदद के लिए लिया और डेरा गाजी खान में भी सैलाब मुतासरीन के लिए पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज ने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को उनके सामान समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरीन में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। रिलीफ कैंप में मौजूद लोगों को खाना और खुश्क राशन फराहम किया जा रहा है। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। पाक फौज के कायम करदा तिब्बी कैंप्स में मुतासरीन को तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे और फील्ड में मौजूद जवानों से गुफ्तगू करेंगे। मुल्क भर में पाक फौज ने मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए 212 जगहों पर इमदादी कैंप कायम किए हैं। सिंध में 81, पंजाब में 73, बलूचिस्तान में 41 और KP में 17 इमदादी कैंप कायम किए गए हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज ने एहतियात जमा कराने के लिए अकाउंट भी बना दिया है, जिसका टाइटल आर्मी रिलीफ फॉर फ्लड इफेक्टिव अस्करी बैंक GHQ ब्रांच अकाउंट नंबर 00280100620583 है। डेरा इस्माइल खान के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ गई है। पाक फौज की जानिब से तहसील परवा, तहसील कलाची परवा, कलाची गिरा मोहब्बत, गिरा शादा, गिरा मट्टा, गिरा मेमराज और लूनी सैलाब ज़दा इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन करके सैलाबी पानी में फंसे लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया गया। पाक फौज की जानिब से गांव बच्चाबाद, गिरा शादा, गिरा मट्टा, गिरा मुमराज और लूनी के सैलाब ज़दा इलाकों में राशन तकसीम किया गया है। मुतासरा इलाकों में पाक फौज ने कार्रवाई करते हुए 40 अफराद को रेस्क्यू भी किया। ज़राए के मुताबिक ज़िला डेरा इस्माइल खान में सैलाब से 221 से ज़ायद देहात तबाह हो गए हैं। 20 अफराद जहाँ बहक, 10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए और 20,000 से ज़ायद मकानात मुनहदिम हो गए। सैकड़ों माल मवेशी हलाक हो गए। तकरीबन 40 एकड़ से ज़ायद पर खड़ी फसलें भी मुकम्मल तबाह हो गई हैं। खबर देंगे आपको अफगानिस्तान से, जिसके मशरकी सूबों में मुसलसल बारिशों के बाद डैम टूट गए हैं। सैलाबी रेला रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया है और अपने रास्ते में आने वाले 3000 घरों को भी अपने साथ बहा ले गया। बेरहम सैलाबी रेलों ने गांव के गांव सफाई हस्ती से मिटा दिए, जिसके नतीजे में 180 अफराद जाँ बहक जबकि 250 से ज़ायद जख्मी हो गए। सैलाबी रेले में 5000 एकड़ पर बागात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि 2000 से ज़्यादा मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। जी नाज़रीन, आपको आगाह करेंगे, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वहाँ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी जाएगी। इमदादी कामों का जायज़ा लेने और मुतासरीन का अहवाल जाने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुतासरीन सैलाब से मुलाकात भी करेंगे और मोहम्मद शहबाज शरीफ हफीज़ाबाद, गाबी खान, कादिरपुर और शिकारपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी लेंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नवीद अज़हर। नवीद, बताइएगा, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त फ़ज़ाई दौरे पर हैं, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो जाफराबाद के सैलाब से मुतासरा गाँव हाजी अल्लाह दीनों के दौरे के लिए रवाना हुए थे कुछ देर पहले, और अभी हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं कि वो सिंध और बलूचिस्तान के जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उनका फ़िज़ाई जायज़ा ले रहे हैं और
वो सूरत हाल को खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सैलाब ने इन इलाकों के अंदर किस किस हद तक जो है वो नुकसानात पहुंचाया है। मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म अभी कुछ देर के बाद सखर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां उनको ओवरऑल जो अब तक के नुकसानात हैं उसके हवाले से तफसीलात बताई जाएंगी। इस वक्त वो सिंध और बलूचिस्तान के जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उनका फ़िज़ाई जायज़ा ले रहे हैं और उनको उनके साथ जो लीडरशिप और दीगर जो NDMA के और दीगर हुकाम मौजूद हैं वो तफसीलात से भी आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो सैलाब है ये तारीख का बड़ा तरीन सैलाब है और ये 2010 के जो रिकॉर्ड हैं वो भी इसने तोड़ दिए हैं और पिछले 30 साल के तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो टूट गए इस सैलाब से और नुकसानात को जो अंदाज़ा है वो बिलियंस में है। सिर्फ सिंध के अंदर 850 अरब रुपए का जो है नुकसान हुआ है, जिसमें लोगों की घर मस्मार हो गए हैं, जानवर और हलाकतें और ज़ख्मी भी हुए हैं बड़ी तादाद में लोग। तो इसकी वज़ीर आज़म गुज़श्ता कई दिनों से फील्ड में हैं और वो तमाम जो सैलाब मुतासरीन हैं उनसे खुद मिल रहे हैं और सूरत हाल का खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं उसके फ़ज़ाई जायज़ा जो है वो ले रहे हैं और हम अपने नाज़रीन को एक्सक्लूसिवली ये तमाम फुटेजेस जो हैं वो दिखा रहे हैं। कुछ देर बाद वो सखर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहाँ पे उनको ब्रीफिंग भी दी जाएगी जिसमें उनको डिटेल बताई जाएगी कि नुकसानात किस हद तक हुए हैं और उसके हवाले से लाहे अमल क्या है और सिंध हुकूमत ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए और उनको फौरी रिलीफ की फराहमी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाक की हुकूमत भी सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल मुआवनत कर रही है और 15 अरब रुपए ऑलरेडी वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं सिंध की हुकूमत के लिए। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्यूनिटी और लोकल जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे भी दरख्वास्त की गई है कि वो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे बढ़ें और हुकूमत की जो सेल है सैलाब ज़दगान की मदद का उसमें अपना हिस्सा डालें। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा ले रहे हैं। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सखर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर वज़ीर आज़म को मज़ीद ब्रीफिंग दी जाएगी। बहुत शुक्रिया नवीद असर आपका। और यहाँ एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए।